معمولات زندگی بحال ہو گئی اور عالم اسلام پر اپنی رائے دینے کے لیے آج ہمارے درمیان ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے پروفیسر راجن کمار صاحب۔ پروفیسر راجن، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، شکریہ آپ اس پروگرام میں آئے ہوئے۔ اور آغاز کرتے ہیں ایران اور امریکہ میں جاری کشمکش سے۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ پابندیاں ختم کرے تو ہم مذاکرات کے حق میں ہیں۔ صدر روحانی نے یہ بات منگل کے روز ملکی دفتر خارجہ میں جواد ظریف سے ملاقات کے بعد کہی۔ وہیں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دے تو بات چیت ممکن ہے۔ حسن روحانی نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ مذاکرات کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے انہیں راہ ہموار کرنا ہوگی۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کو معاشی دہشت گردی قرار دیا۔ وہیں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ نے بہت کوشش کی کہ وہ مشرق وسطی میں ایران مخالف اتحاد تشکیل دے سکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے ایران پر امریکی پابندی کو امریکہ کی سفارتی ناکامی قرار دیا۔ جواد ظریف نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے حقوق سلب کرنا چاہتا ہے، تاہم وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جواد ظریف نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ ایران آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل بند کر سکتا ہے، لہٰذا کھلے سمندر میں کسی طرح کے جرائم برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ان پر عائد پابندیوں نے جوہری مذاکرات کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور یہ امریکہ کی سفارتی ناکامی ہے۔ واضح ہے کہ چند روز قبل امریکہ نے جواد ظریف پر بھی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امریکہ کا موقف تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو دہشت گردی کی پشت پناہی کے ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ امریکہ اور بعض دیگر ممالک کے ساتھ ایران کے رشتوں میں تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایران نے چند روز قبل خلیج فارس میں مزید ایک تیل بردار جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے، جس کے بعد سے تہران حکومت کی جانب سے قبضے میں لیے گئے آئل ٹینکروں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ تیل بردار جہاز اسمگلنگ میں ملوث تھے، جسے روکنا ضروری تھا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ جانتے ہیں امریکی رد عمل دفتر خارجہ میں عالمی امور کی اردو ترجمان محترمہ ہیلینا وائٹ سے۔ جی ہیلینا وائٹ صاحبہ۔ تحسین صاحب دیکھیے، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم پہلے کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران پر ہمارا دباؤ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایران اپنا غیر مستحکم کرنے والا رویہ تبدیل نہیں کر لیتا۔ ابھی چند دن پہلے وزیر خارجہ پومپیو نے ایران کے جوہری پروگرام پر لگائی گئی پابندیوں کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے سیکریٹری پومپیو نے کہا کہ ایران پر پابندیوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ ہمیں ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی میں مدد کرے گا، جس سے جوہری پھیلاؤ کا خطرہ کم ہوگا، ایران کے جوہری ہتھیار کے حصول کے وقت میں کمی آئے گی اور ایران کی حکومت کو جوہری پھیلاؤ کے اہم کردار ادا کرنے والی جگہوں کو تبدیل کرنے میں رکاوٹ پیش آئے گی۔ دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دینے والی ریاست اپنی جوہری پروگرام کو بین الاقوامی برادری کو یرغمال بنانے اور علاقائی کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے مسلسل استعمال کر رہی ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے امریکہ پرعزم ہے، اور ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اس مقصد کے لیے امریکہ اپنی تمام تر سفارتی اور معاشی طریقوں کو بروئے کار لانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک ایران ہماری سفارتی کوششوں کو رد کرتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کو وسعت دیتا رہے گا، تو اس پر معاشی پابندیاں اور سفارتی تنہائی میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔
प्रोफेसर राजन, आपने सब बातें सुनी, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ नफसियाती जंग चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉर है। देखिए, जो ईरान और अमेरिका की बात करें तो पहले तो ये बता दूं कि जो अमेरिकन पॉलिसी है ईरान में सरासर गलत है, और अमेरिका ईरान का जो स्टेटमेंट आया है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ गया इसमें। उसका कारण ये मैं बता रहा हूँ कि आज के समय पे देखें कि यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी है वो ईरान के साथ व्यापार करना चाहती है, वो सैंक्शन के विरोध में है। भारत की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें, पाकिस्तान की तो सब करना चाहते हैं ईरान के साथ ट्रेड, और अमेरिका चाहती है कि वो ट्रेड बंद हो जाए, उस पर सैंक्शन लग जाए। और अमेरिका की पॉलिसी देखे कि जो कॉम्प्रिहेंसिव जो एक जॉइंट एक्शन प्लान चल रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ, जो उनके निगोसिएशन चल रहे थे, तो उस निगोसिएशन में बहुत ही क्लियर थे कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट की जिसकी बात कर रहा है अमेरिका, तो वो पहले ही उसके तैयार हो गया था कि एक सर्टेन लेवल के बाद यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा, और जो इंस्पेक्टर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा या उस मीटिंग के माध्यम से, तो वहाँ इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे क्लियर बताया कि हम अमेरिका उससे वॉकआउट कर गया उस नेगोशिएशन से। तो इसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसमें ईरान की गलती है। ये पूरा विश्व जानता है और सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये जो पॉलिसी है अमेरिका की गलत पॉलिसी है। तो क्या अमेरिका में भी इसको लेके जो है ट्रंप को इतनी हिमायत नहीं है? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा। बढ़िया सवाल इसलिए पूछा कि अमेरिका में भी ये डिबेट चल रहा है। अमेरिका में चूंकि 2 पार्टी सिस्टम है, मतलब और पार्टियां भी हैं, लेकिन जो 2 मेजर पार्टियां डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी है, तो डेमोक्रेट्स के बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है, जो अमेरिका की जो ट्रंप की पॉलिसी है, ये ईरान के विरोध में नहीं है, ये ओबामा के अगेंस्ट में है। क्योंकि ओबामा ये ईरान से जो निगोसिएशन हुआ था उसको बहुत ही सक्सेसफुल निगोसिएशन माना जा रहा था अमेरिका के लिए, और ये ट्रंप को पसंद नहीं था। तो जो ट्रंप ने एक जो पॉलिसी ईरान के विरोध में लाई, जिसमें कि वो वॉकआउट कर गए, फिर से सैंक्शन लगा दिया, तो वो सैंक्शन कहा जाता है कई बार कि ये ईरान के नहीं अगेंस्ट में है, ये ओबामा और वहाँ के जो डेमोक्रेट्स उसके अगेंस्ट में। आप वहाँ के जो स्क्वाड है जिसमें अभी कुछ लीडर्स हैं, इल्मा उमर की मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग, तो वो बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि जो इनकी जो नीति है, इनकी जो अमेरिकन पॉलिसी है, ट्रंप की जो पॉलिसी आज के टाइम पे ईरान में, वो सरासर गलत है। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का, लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। चलते हैं इसराइल। इसराइल ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के लिए 6000 घरों की तामीर का ऐलान किया है। इसराइली हुकूमत ने मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के लिए भी 700 घरों की तामीर को भी मंजूरी दी है। पेश है ये रिपोर्ट। इसराइल ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के लिए 6000 जबकि फलस्तीनियों के लिए 700 घरों की तामीर को मंजूरी दी है। नए घरों की मंजूरी का ये फैसला मगरबी किनारे में इसराइल की मौजूदगी बढ़ाने के मकसद से किया गया है। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के लिए घरों की मंजूरी मामूल से हटकर है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि फलस्तीन के बाशिंदों के लिए मकानात की नई तामीर होगी या मगरबी किनारे के एरिया सी के नाम से मशहूर 700 मकानों को महज कानूनी मंजूरी दी जाएगी। एरिया सी के इलाके में फलस्तीनी गांव अक्सर इसराइली आबादियों के करीब होते हैं और ये इलाका मुकम्मल तौर पर इसराइल के ज़ेरे कंट्रोल है। फलस्तीन की क़यादत ने इसराइल के इस ऐलान को ये कहते हुए मुसरद कर दिया है कि वो मगरबी किनारे में किसी भी इसराइली तामीर या फलस्तीनी तामीर पर कंट्रोल को खारिज करते हैं। फलस्तीनी क़यादत का ये भी कहना है कि ये इसराइली कवानीन की सियाह नौ आबादियाती जहनियत का सबूत है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों, बैनुल अक़वामी कवानीन और दस्तखत शुदा मुआहिदों को नज़रअंदाज करता है। वाज़ेह है कि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत मगरबी किनारे पर इसराइली बस्तियों का क़याम गैर कानूनी है, लेकिन इसराइल इसको तस्लीम नहीं करता। ये इक़दाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के आने वाले दौरे के तनाजुर में किया गया है, जो व्हाइट हाउस में अमन मुआहदे के लिए की जाने वाली कोशिशों की सरबराही करते हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे में तकरीबन 4 लाख यहूदियों को आबाद किया है, जबकि 2 लाख यहूदी मशरिक़ी यरूशलेम में क़याम पज़ीर हैं। मगरबी किनारे में तकरीबन 25 लाख फ़लस्तीनी रिहाइश पज़ीर हैं। फ़लस्तीनी मगरबी किनारे, मशरिक़ी यरूशलेम और गज़ा पट्टी पर अपनी रियासत कायम करना चाहते हैं। फ़लस्तीन का कहना है कि इन बस्तियों की वजह से मुस्तक़बिल में खुद मुख्तार रियासत का क़याम मुमकिन नहीं। इसराइल का कहना है कि फ़लस्तीन बस्तियों के मामले को रास्त अमन मुज़ाकरात से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बस्तियां क़याम अमन की राह में हकीकी रुकावट नहीं है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात सन 2014 से तातुल का शिकार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। प्रोफेसर राजन, ये जो अभी हमने देखा था कि इसराइल ने वहाँ पे फ़लस्तीनियों के मकानात को मिसमार किया था, और अब जो वेस्ट बैंक में ये जो सेटलर्स वगैरह हैं उनके लिए तो घरों के लिए मंजूरी दे दी है, उसके साथ साथ इन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए भी 600-700 मकानात की परमिट देने की बात कही है। तो क्या इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं इस बहुत ही क्लियर नज़र से पूरे विश्व देख रहा है। दो देश हैं जो कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एक है इजराइल और इजराइल का सपोर्टर अमेरिका। सारे देशों की पॉलिसी, यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉलिसी, चाइना, रूस, भारत की भी पहले की पॉलिसी अगर देखें तो ये क्लियर है कि वेस्ट बैंक में आपको अगर फ़लस्तीनियन को घर बनाना है तो उसमें परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत है। अब मुझे आके कोई बोले कि मैं कश्मीर में या दिल्ली में मुझे घर बनाना है तो ये पाकिस्तान से परमिशन लें, तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? तो वेस्ट बैंक फ़लस्तीन का हिस्सा है और ये पूरा विश्व जानता है। और जो वेस्ट बैंक पे कब्जा है वो इजराइल का कब्जा है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, कई बार रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं। सारे जो विश्व की शक्तियां हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो वेस्ट बैंक पे जो 1967 के बाद जो कब्जा शुरू हुआ था वो कब्जा कंटिन्यूसली अभी तक चल रहा है। और ये जो इजरायली जो 6000 सेटलमेंट बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये इलीगल है। जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसकी नज़र से आप देखेंगे तो ये सरासर इलीगल है। और ये एक तरह से एक जो सी एरिया जिसको बोला जाता है इजराइल का, वेस्ट बैंक का, सॉरी, तो वेस्ट बैंक का सी जोन है, वहाँ पे ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये 1967 से आज तक देखेंगे तो वेस्ट बैंक हमें सिकुड़ता जा रहा है और इजरायली सेटलमेंट वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और ये बैलेंस करने के लिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे 600 या 700 लेजिटिमाइज हो जाए। हाँ, नहीं, लेकिन क्यों वो लेजिटिमेसी? जब उनका लैंड है तो आप उस लैंड को, आप वहाँ पे कॉलोनाइजर हैं, ऑक्यूपेंट हैं, वहाँ पे आपने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली, तो आप वहाँ पे परमिशन देने वाले कौन होते हैं? ये तो आपको उनसे परमिशन लेना चाहिए कि वहाँ पे वो आपके जो सेटलर्स हैं 6000, उनसे आपने तो परमिशन लिया नहीं। तो ये देखिए एक बहुत ही इलीगल स्टेप है इजराइल का और ये शुरू से चलता जा रहा है और इसका पुरजोर विरोध हो रहा था। वहाँ पे एक्चुअली ये पॉलिसी है कि जो पहले सी जोन है, सी एरिया है वेस्ट बैंक का, उसको कब्जा करें और बाद में जो दूसरे एरियाज हैं उसमें भी इसके प्रभाव को, इजराइल के कंट्रोल को बढ़ाया जाए। और इससे फ़लस्तीन के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उनको जो फ्रीडम ऑफ जो दूसरी जगहों पे जा सकते हैं वो रुक जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाते हैं और वहाँ पे एक नॉमिनल पैलेस्टीनियन एक अथॉरिटी है, लेकिन जो मेजर कंट्रोल है वो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का है। तो इससे पैलेस्टीन में काफ़ी दिक्कत हो रही है और पैलेस्टीन जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल को वहाँ से छोड़ के जाना चाहिए। सऊदी अरब में पहली बार खवातीन को मर्द की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट बनवाने का इख्तियार हासिल हो गया है। अब 21 बरस से ज़्यादा उम्र की कोई भी खातून अपने मर्द निगरां की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने शहरी कवानीन में कई तरमीम को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब में अब खवातीन को बैरून मुल्क सफर करने के लिए किसी महरम या मर्द निगरां की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। शाही फरमान के मुताबिक 21 बरस से इससे जायद उम्र की कोई भी खातून अपने मर्द निगरां की इजाजत के बगैर पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकती है। अब सऊदी अरब के तमाम बालिग शहरी पासपोर्ट और सफर के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और इस हुक्म के बाद खवातीन भी मर्दों के बराबर आ गई है। जारी किए गए दीगर शाही हुक्मनामों के मुताबिक खवातीन को अपने बच्चे की पैदाइश, शादी और तलाक के इंदराज जैसे हुकूक भी दिए गए हैं। इसके साथ अब खवातीन पहली मर्तबा खुद सरकारी खानदानी दस्तावेजात भी हासिल कर सकेंगी। इन हुक्मनामों का इतलाक मुलाजिमती ज़वाबित पर भी होगा और इससे खवातीन के लिए मुलाजिमत के मौके भी बढ़ जाएंगे। नए ज़ाब्ते के तहत अब मुल्क के तमाम शहरियों को उनकी जिन्स, उम्र या किसी माजूरी से बालातर होकर मुलाजिमत के लिए अहल समझा जाएगा। वाज़ेह है कि अब तक सऊदी अरब में किसी भी खातून को बैरून मुल्क सफर करने या पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी निगरां मर्द जैसे कि वालिद, शौहर या किसी और मर्द रिश्तेदार की इजाजत लेने की जरूरत होती थी और जो खवातीन घरेलू तशद्दुद या बदसलूकी से भागना चाहती थीं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर सफर करना पड़ता था। सऊदी अरब के वली अहद
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुल्क के सख्त गीर कवानीन में बतदरीज नरमी ला रहे हैं और अब इसके तहत मुल्क में खवातीन को गाड़ी चलाने की भी इजाजत है। सन 2016 में उन्होंने मुल्क के माशी मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए एक मंसूबा पेश किया, जिसके तहत सन 2030 तक मुल्क में मुलाजिमत पेशा खवातीन की तादाद 22% से बढ़ाकर 30% करने का हदफ भी शामिल है। गुज़िश्ता इस्लाहात के बावजूद सन 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक सऊदी अरब खवातीन के रहने के लिए बदतरीन मुमालिक में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं। पेश है रिपोर्ट। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल बुध के रोज धमाके से दहल उठा। अफगान मीडिया के मुताबिक जिला पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर कार सवार खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब एक गाड़ी को पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर वाक़े चेक पॉइंट पर रोका गया। अफगान वजारत दाखिला ने खुदकुश हमले के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत की तस्दीक की, जबकि हमले में खवातीन और बच्चों समेत 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं, जबकि धमाके से आसपास के इलाके में मौजूद रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अफगान वजारत सेहत के मुताबिक धमाके में खवातीन और बच्चों समेत ज़्यादातर आम शहरी जख्मी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तालिबान ने खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि हमले में मुतअद्दिद पुलिस और फौजी एहलकार भी मारे गए हैं। अफगानिस्तान में यह ताज़ा पुरतशद्दुद वाक़या एक ऐसे वक्त में हुआ है जब तालिबान और अमेरिका इस शोरशज़दा मुल्क में क़याम अमन की कोशिशों का सिलसिला तेज कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर राजन, अगर देखा जाए तालिबान के साथ बातचीत जारी है और ये जो है क्या दबाव बनाने के लिए तालिबान का जारी है कि अगर एक तरफ बातचीत होती है और उसमें भी ये होता है कि भाई शहरियों पर हमला नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। देखिए, तालिबान में भी बहुत सारे फोर्सेस हैं आज के वक्त पे, और अभी वहाँ पे भी फाइनल जो सेटलमेंट होना चाहिए तालिबान और जो तालिबानी सरकार है उसके बीच में, उसमें काफ़ी टसल चल रहा है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका की जो अभी जो अफगान पीस प्रोसेस जो अभी आपने देखा खलीजाद वाला जी, तो खलीजाद, तो वहाँ पे उन्होंने चीन को उसमें शामिल किया, उसमें पाकिस्तान शामिल था, उसमें रूस को शामिल किया गया। और उनकी वार्तालाप किससे चल रही है? उनकी वार्तालाप अफगानी सरकार जो वहाँ पे नहीं चल रही है, उनकी वार्तालाप हो रही है तालिबान से। वो वार्तालाप क्यों तालिबान के साथ हो रही है? तो उनको लगता है कि अगर तालिबान, चूँकि उनको लगता है कि तालिबान का अभी भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे काफ़ी एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और इलेक्शन जब भी अभी होने वाला है कुछ महीने, 1-2 महीने में, तो वहाँ पे उनको लगता है कि तालिबान फिर से वहाँ पे पावर में आने वाला है। तो अमेरिका को तो ये क्लियर है कि तालिबान से ही निगोशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी आर्मी को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि देखिए अभी पाकिस्तान को भी उस पीस प्रोसेस में शामिल कर लिया। लेकिन जो वहाँ पे अलग अलग जो फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में, वो सारे के सारे इस चीज़ से अग्री नहीं कर रहे हैं। वहाँ जो निगोशिएशन चल रहा है उसमें कई फोर्सेस हैं जो इस निगोशिएशन को नहीं मानते हैं। सवाल ये भी है कि जो अभी अफगानी रजीम है वहाँ पे, उसका क्या स्टेटस होगा, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। और चूँकि भारत की पॉलिसी ये रही है कि तालिबान से बात नहीं करेगी, नॉन निगोशिएशन की पॉलिसी अभी तक रही है, तो भारत को भी अपनी पॉलिसी को मुझे लगता है कि रिविजिट करने की ज़रूरत है, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है कि अमेरिका जो कि तालिबान को वहाँ से डिस्प्लेस किया था, वो उससे बातचीत करने के लिए तैयार है। रशिया, चाइना बात उससे कर, तालिबान तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान है ना, तो उस लिहाज से भारत की बात कहाँ तक मानेंगे? जी, ये आपने ठीक बोला कि तालिबान को जो मेजर सपोर्ट मिलता है वो पाकिस्तान से मिलता है, लेकिन एक फ़र्क भी है। एक फ़र्क यह है कि वहाँ पे एक अफगान नेशनलिज्म का फीलिंग तालिबान में बहुत स्ट्रांग है, और वो जो नेशनलिस्ट फीलिंग है तालिबान में, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि तालिबान बिल्कुल जो पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तानी आर्मी है, तो उसके जो आइडियोलॉजी है उसके माध्यम से चले। लेकिन वहाँ पे एक फ़र्क आता है, वो तालिबान जो है वो पाकिस्तान को चूँकि सप्लाई है, सपोर्ट है, आर्मी का सपोर्ट है, तो उसको मानते हैं।
उसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं, लेकिन सेम टाइम उनको ये भी लगता है कि हमारा अस्तित्व अलग भी है और उनको लगता है कि हमारा अस्तित्व अलग होना चाहिए। तो भारत को जो एक टेंशन है तालिबान और पाकिस्तान, तो इस टेंशन पे काम करके तालिबान के साथ भी एक डिप्लोमेटिक चैनल तो कश्मीर के बाद तनाव और ही बढ़ गया भारत पाकिस्तान के बीच, तो फिर उसको कैसे करेंगे? नहीं, तो ये तो अच्छा मौका है। हाँ। आपको पाकिस्तानी आर्मी से तनाव बढ़ा है, लेकिन आपको तालिबानी जो है या उस ढंग के जो फोर्सेस हैं जो भारत के साथ बात करना चाहिए, तो आपको बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूडान में जो है एक अच्छी खबर है कि सूडान में बरसर इक़्तिदार फौजी कौंसिल और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान एक नए आईनी मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क में उबूरी हुकूमत के क़याम की राह हमवार होगी। मुआहदे का ऐलान सालिस का किरदार अदा करने वाले अफ्रीकी यूनियन के मोहम्मद हसन लेबाट ने किया। दीगर सालिसों ने भी मुआहदे की तस्दीक की है। रिपोर्ट देखिए। अप्रैल में फौज की जानिब से सदर उमर अल बशीर की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से सूडान अफरा तफरी का शिकार रहा है। इसी हंगामा आराई और पुरतशद्दुद माहौल में नए आईनी मुआहदे पर काफी तवील बहस जारी रही और बिलाखिर मुआहदा तय पाया। दरअसल जुलाई में फौज और हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत में शराकत से मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, ताहम मुजाहिरीन इस मुआहदे की मजीद तफसीलात के इंतजार में थे। बताया जाता है कि ये मुआहदा गुज़िश्ता माह फौज और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान दस्तखत होने वाले 3 साल की उबूरी हुकूमत के मुआहदे का खुलासा है। इस डील के मुताबिक मुल्क में हुकूमत चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी तश्कील दी जाएगी, जिसमें 600 सिविलियन और 5 फौजी जनरल शामिल होंगे। मुआहदे के मुताबिक पावर शेयरिंग यानी हुकूमत पे हिस्सेदारी 39 माह के लिए होगी। एक खुद मुख्तार काउंसिल, काबीना और कानून साज इदारा बनाया जाएगा। पहले 21 माह काउंसिल का सरबराह फौजी जनरल होगा, जबकि बाकी 18 माह एक सिविलियन इसकी सरबराही करेगा। काबीना की सरबराही एक वज़ीर आज़म के तहत होगी, जिसकी नामजदगी जमहूरियत पसंद तहरीक करेगी, जबकि दिफा और वज़ारत दाखिला के वज़रा का तायुन फौज करेगी। इस ऐलान के बाद सूडान में जश्न मनाया जा रहा है। जमहूरियत पसंद इस बात को लेकर खुश हैं कि अब मुल्क में सिविलियन हुकूमत का क़याम ज्यादा दिन दूर नहीं। एक लंबे उबूरी सेटअप को जमहूरियत पसंद तहरीक की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आखिर में आपको छोड़ जा रहे हैं बरसों से शोरी ज़दा रहे मुल्क शाम के हलब शहर में, जहां अब मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रही हैं और हलब के कदीम मार्केट में आप ज़िंदगी के आसार नुमाया हो रहे हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। बैनुल-अक़वामी इदारे आगा खान फाउंडेशन की माली माउनत से हलब की कदीम मार्केट की तजदीद की गई है। आप रहिए हलब शहर के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलम इस्लाम इस हफ्ते में अपनी राय देने के लिए, और हाजिर होंगे अगले हफ्ते फिर आलम इस्लाम की सरगर्मियों के साथ। तब तक बेदार रहिए, खबरदार रहिए। वैसे तो हलब मार्केट का ज्यादातर हिस्सा ताहाल भी बर्बादी की दास्तां सुना रहा है, लेकिन कदीम मार्केट के एक हिस्से को तिजारत के लायक बनाने की कोशिश की गई है और यहाँ मामूलाती जिंदगी बहाल की जा रही है। अब जल्द ही इस मकाम पर बिजनेस शुरू होने वाला है। 8 साल जंगो जदल के बाद 2016 में यहाँ शामी फौज दाखिल हुई थी और इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तब से अब तक हलब का ये इलाका कदरे सुकून में है और यही वजह है कि अब मामूलाती जिंदगी बहाल होने के आसार नुमाया हैं। वाज़ेह है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हलब के कदीम शहर की कई तारीखी इमारतों को जंग में नुकसान पहुँचा था। हम आपको बता दें कि इसी शहर में 13वीं सदी की मारूफ इमारत उम्मय्यद मस्जिद भी मौजूद है, जो शहर की जामा मस्जिद है। यूनेस्को के अंदाजे के मुताबिक जंग के दौरान कदीम शहर का 60% हिस्सा बर्बाद हो गया था। बैनुल-अक़वामी तरक्याती एजेंसी आगा खां फाउंडेशन की फंडिंग से हलब के एक छोटे इलाके की तजदीद की गई है और अल-सख्तिया मार्केट को आरास्ता किया है, जिसमें 53 दुकानें हैं। दुकानदार अपना कारोबार शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।